हेलो भव्या मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड बट डोंट कॉल मी मैम. क्यों? मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ तुमसे एक दो ओके, साल छोटी ही हूँ बस. छोटी हो, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने टाइम दिया. बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉडकास्ट. इससे पहले बहुत सारे पॉडकास्ट जो है कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि गेस्ट के पास टाइम नहीं है, लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो थैंक यू. यू फाउंड अ गेस्ट जिसके पास टाइम ही टाइम है. ऐसा नहीं है. सो टाइम बहुत लोगों के पास है, बट हाँ. ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ता है जिसके पास नॉलेज भी है और टाइम भी है. Oh, सो I'm flattered then. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ. दैट इज, डोंट वरी, ये केबीसी नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल. I know you're not paying me, so chill. ओके, ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग. क्योंकि जो मार्केटिंग एनालिस्ट एक रोल है, मैं भी मार्केटिंग एनालिस्ट हूँ. तो एक मार्केटिंग एनालिस्ट का जो रोल होता है उसमें सबसे ज़्यादा अगर उसको काम करना पड़ता है, दैट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग. तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज न्यू टर्म बहुत लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के पर्सन है जो मार्केटिंग में नहीं डेफिनेटली, या फिर सोलोप्रेनर्स हैं, उनके साथ बात की तो उनको नहीं पता है कि जो एड्स चलाते हैं उसको ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं. तो कैन यू लाइक जस्ट एलॉबरेट व्हाट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग? Yeah. So performance marketing is also a marketing effort, but it involves a lot of your budget. Okay. So any marketing effort or any marketing activity where you are putting in money and you're expecting a return out of it can be coined as a or can be called as a performance marketing. Okay. Because you are focused on the results it is going to generate. Okay. Okay. So let's say you're putting in money to run Google ads or Facebook ads or any platform you're putting effort and also money and you want something in return. So that activity can be called as a performance marketing. Can you consider influencer marketing into performance marketing? Yeah, that is also That is performance also performance heavy. marketing. Yeah, because you're paying, you're not paying a channel or a media platform, but you're paying a person. Okay. And from that person's reach you're going to get leads. Okay. So that is also a type of performance marketing. ओके, सो बहुत मतलब मिसकंसेप्शन है मार्केट में दैट परफॉर्मेंस मार्केटिंग मीन्स एड्स ओनली. ये बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है. तो दैट मीन्स अगर हम कहीं भी पैसा डालते हैं और वहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि कुछ लीड्स आए, कन्वर्जन आए, तो हम उसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोल देंगे. Not necessarily, like you Okay. said कि there is a misconception that जहाँ पे भी ad run कर रहे हैं तो that is called performance marketing. No, so your effort should be in that direction. You can spend money to drive traffic, you can spend money to drive to generate awareness, but performance marketing is when you are generating leads, when you are doing this activity through money or you're putting in budget to generate leads. So that is performance marketing. There are different forms of marketing. Okay. And ads also has a different ads are also of different types. But where you are highly focused on the performance or the return or ROAS, return on ad spent, so that is called performance marketing. Okay. So basically you have worked with HCL, Yes. TVS, and Yes. right now you are working with InMobi. Correct. All are B2B? Yes. Okay. So can you like explain what is B2B versus B2C versus D2C? Yeah. Because I think it is very important, because the type of company is totally means the work of analyst is totally depend upon the funnel, and funnel is totally depend upon the company's business, right? Whether it is B2B or B2C. So just elaborate. So, okay, I'll start with the D2C question first. So D2C is a ecosystem where the organization's products directly reach to the customer. Okay. Let's say Boat is the best example to pick because they directly cater to their customer, and that involves product to customer. So that is the only journey. Okay. So that is D2C. With what B2C is, जहाँ पे you are selling goods but there is a channel involved. So it can be through wholesalers or retailers, and then it is going to the customer. तो मतलब there are stages between the business and the consumer.
सो दैट इज़ गोइंग टू बी B2C. हाउ टू डिफ्रेंशिएट, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे B2C को और D2C को. D2C में जो प्रोडक्ट है इट रीचेस टू द कस्टमर डायरेक्टली वाया अ डिजिटल चैनल. ओके, सो जैसे कि मैंने बोट का एग्जांपल दिया, you see the product online, you buy it. So that is D2C. It can be B2C as well. Yeah. When there are different channels involved. I mean different stakeholders involved in between. Like Amazon, Flipkart. Yeah. Okay. B2C can be called, जैसे we can Flipkart has a B2C model. Yeah. Okay. तो Flipkart is selling different types of products. वो बोट भी सेल कर रहा है. And boat has an individual website also. So boat individually selling their products from boat's website is D2C. Or अगर boat is taking Flipkart's help to sell their products, that will be B2C. Okay. ठीक है. Got it. And now coming to B2B. So as the name suggests, business to business. Okay. जहाँ पे दो businesses involved हैं. Let's say I'll take an example of HCL. So HCL is a service-based company. They make softwares. They want to sell software to a startup who wants to streamline their payroll system. Okay. So HCL has a software, payroll software. They are selling it to a startup A to streamline their payroll system. So that is B2B. From one business to other business. Okay. So जितना मैं ओवरऑल समझा उसके अकॉर्डिंग बोट इज सेलिंग देयर प्रोडक्ट टू कस्टमर डायरेक्टली हो सकता है D2C. उसके बाद में ये हो सकता है कि वाया वो सेल कर सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट, तो हो गया वो B2C. और B2B मीन्स हो सकता है कि HCL किसी को सॉफ्टवेयर सप्लाई कर सकता है क्योंकि उन कंपनी को प्रोडक्ट भी सप्लाई कर सकता है. दैट इज B2C. That is B2B. राइट. सॉरी. सो ये जो है आई थिंक ये फनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई मार्केटिंग एनालिस्ट बनना चाहता है या फिर मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको पहले फनल समझना पड़ता है, कस्टमर को समझना पड़ता है, फिर उनके ऑडियंस को समझना पड़ता है. उसके अकॉर्डिंग उनको परफॉर्मेंस मार्केटिंग दैट इज एड्स एंड जितने भी हम जहाँ पे भी पैसे डाल के लीड जनरेट करते हैं वो बहुत क्लियर हो जाएगा. अब इसमें एक एनालिस्ट का रोल कैसे हो सकता है एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पीछे या फिर एक मार्केटिंग टीम के पीछे, कि एनालिस्ट की कितनी ज़रूरत है और किस टाइप का डेटा वो एनालाइज करते हैं. Okay, so marketing में analysis is very important. Okay. You need to understand what your competition is doing, how is the market, and whatever they are doing is working for them or not. Okay. And if it's working, how much is it working, and if it's not working, what we can do to make it work. Okay. So there comes a role for analyst. Yeah. So he needs to analyze the market, he needs to analyze the numbers as well कि सबसे पहले तो if you are doing a marketing activity or you are putting in a marketing effort, you need to understand what is your audience size. You cannot have an open targeting for everything for your business or for your service. Let's say today I am selling chicken curry kurta, so I need to understand कि मेरा अब तो वेजिटेरियन हो. चिकन कारी कुर्ता. What is this? That's a type of embroidery. Okay, I thought it's a chicken. No. Okay, I thought it's a dish. No, so that's a type of embroidery. That's an Indian embroidery. Okay. Mostly done on clothes. So earlier it was done for women clothing. Okay. But there has been an expansion और अब वो हर कोहॉर्ट को केटर करते हैं. ठीक है. तो अब इसके लिए भी आई हैव टू एनालाइज कि मेरा मार्केट साइज़ क्या होने वाला है. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू मैंशन कि चिकन कारी एम्ब्रॉयडरी इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट. तो नॉट एवरी वन कैन डू लाइक बाय इट. ओके. एंड इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कैपिटल. सो वो सब कीपिंग ऑल दोज थिंग्स असाइड, टॉकिंग अबाउट द एनालिस्ट थिंग. तो द एनालिस्ट मस्ट अंडरस्टैंड कि वो किसको टारगेट कर रहा है. मैंने उसको बोल दिया कि आई वॉन्ट टू सेल चिकन कारी कुर्ताज एंड इट्स ऑन मलमल कॉटन फैब्रिक. तो यू विल हैव टू कम टू मी
with the audience, with the target audience, Right. and you let me know what cities, what age group, and these can what demographic I can Okay. target. So he should have that understanding ki okay, kurta is only going to be worn by women, so women is going to be my target audience. Now what age group can I target? ओके What- सो हाँ. ये डेमोग्राफी, सिटी, उसके बाद में जितने भी फैक्टर्स हैं उस पर तो हम आएंगे, बट माय क्वेश्चन इज फॉर एग्जांपल मुझे कुछ सेल करना है, किंडर जॉय यू नो वो सेल करना है, तो उसके लिए मैं किस टाइप के ऑडियंस को जो है टारगेट करूँगा, या फिर आपका जो एनालिस्ट है वो किस टाइप के ऑडियंस के लिए सर्च करेगा, यानी कि कीवर्ड्स हो सकता है या डेमोग्राफी हो सकता है? किंडर जॉय का ऑडियंस जो है इट इज़ गोइंग टू बी किड्स ओनली, बट किड्स आर नॉट ऑन योर सोशल Right. प्लेटफॉर्म और सर्च प्लेटफॉर्म, Okay. तो यू विल हैव टू टारगेट देयर पेरेंट्स. ओके ठीक है, तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि किस एज ग्रुप के लोगों के बच्चे जनरली हो जाते हैं या बच्चे होंगे या किस एज में होंगे. दैट इज अगेन एनालिसिस पार्ट. Yeah, that is again analysis. You'll have to analyze ki you cannot target an audience which is between 18 to 23 because these days people don't get married that early. ठीक है, you cannot again target people between 25 to 28 क्योंकि if they have children also like they will be like 1 or 2 year old. राइट. तो you'll have to deep dive into that. समझना पड़ेगा कि कितने एज पे लोगों की इंडिया में शादियां हो जाती हैं. Right. तो वो डेटा भी यू विल हैव टू गो थ्रू. या अनदर क्वेश्चन इज, आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है एक टाइप का, क्योंकि आप डायरेक्ट इसमें कस्टमर को टारगेट नहीं कर सकते हो. करेक्ट. राइट. उसमें आपके जो डिसीजन मेकर है उनको आपको टारगेट करना है, हाँ. और उसके थ्रू आपको कस्टमर तक जाना है, इन शॉर्ट. Yes. राइट. डेफिनेटली वो जो डिसीजन मेकर है वही उनको खरीद के देंगे, हाँ. बट आपको टारगेट तो उनको ही करना है. हाँ. उनके हिसाब से आपको करना है. So- तो इसमें हम डेटा कहाँ से ले सकते हैं, मतलब ऐसे कोई गूगल खुद से प्रोवाइड करता है ऐसी चीज़ें, या फिर हमें जेनेरिक सर्च खुद से जाके सर्च करके, जैसे अगर मेरा टारगेट ऑडियंस इंडिया का है तो इंडिया में मैं सर्च करूँगा कि जनरली शादियाँ कब हो जाती है, बच्चे कब हो जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं डेटा और ये निकालता हूँ. करेक्ट. यू विल फाइंड एवरी डेटा ऑन गूगल. ओके. तो अगेन यू विल हैव टू एनालाइज, यू विल हैव टू रीड, you'll have to explore. या रिसर्च इन शॉर्ट. Yeah, so there's a term called marketing intelligence. ओके. So where you involve your intelligence to do stuffs related to marketing, be it research, be it exploration, be it finding topics on which you can be putting your marketing efforts in. Correct. जहाँ पे आप ब्लॉग्स लिख रहे हो उन टॉपिक्स पे, आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने रिसर्च से कि मैं इन चीज़ों पे शायद, अगर लेट्स से आई एम अ ब्लॉगर, तो अगर मेरा कुछ नीश नहीं है, आई एम राइटिंग ऑन जेनरिक टॉपिक्स, तो उस पर भी मुझे आइडेंटिफाई करना होगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट में व्हाट पीपल आर राइटिंग एंड व्हाट पीपल आर लविंग. सो दैट is going to take a lot of research from my end also. I'll have to invest time Right. in researching, in reading, and that's how I'll be able to determine कि मैं इन topics पे बात कर सकती हूँ. These topics are going to get engagement. ओके. आई थिंक एड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो कीवर्ड्स. Correct. एंड Everything कीवर्ड्स boils में down to the 2-3 keyword चीज़ें level. रहती है. दैट इज़ नंबर 1 इज़ आपका वॉल्यूम, नंबर 2 इज़ कंपटीशन. कोई और चीज़ रहती है जिसको हम देखते हैं, या No, दो ही चीज़ें definitely सबसे competition इंपॉर्टेंट है? can be called keyword difficulty. Like how difficult is that keyword to rank, or Okay. how. So what is the difference between competition and keyword Again, difficulty? It's same. It's same. Like a keyword which is more difficult, it means it has high competition. Yeah, right. Right. It can have high search volume also, but it is very like there are a lot of competitors who are bidding on it. Okay. So mainly there are two terms. One is keyword difficulty and keyword volume. Correct. Right? Correct. Can you explain keyword volume? Yeah. So Because I think जब भी मैं मेरे सीनियर को जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग हैंडल करते हैं उनको जब भी कोई कीवर्ड देता हूँ तो वो दोनों चीज़ पे ही सबसे ज़्यादा डिपेंड है कि, और तीसरी चीज़ इज बिड, जो हम गूगल कीवर्ड प्लानर से उठाते that comes to That- that comes that into play when you are doing एक्चुअल ads. हाँ एक्चुअल एड्स. ads. सो या दैट्स द क्वेश्चन ओनली कि कीवर्ड सर्च वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसके बीच. Okay, so I'll try to simplify it as much as I can.
लेट्स से आई डोंट नो व्हाट इज़ अ कीवर्ड, मुझे नहीं पता है कि कीवर्ड क्या है, क्योंकि कीवर्ड तो उनको पता होगा जो मार्केटर हैं. या राइट. मुझे तो ये पता है कि मेरी एक सर्च क्वेरी है. मेरी जो सर्च क्वेरी है एक यूज़र के लिए, वो एक मार्केटर के लिए कीवर्ड है. या ठीक है. तो जब हम गूगल पे कोई सर्च क्वेरी लेके जाते हैं एंड वी सर्च अबाउट इट, वी सी रिजल्ट्स, वी सी एड रिजल्ट्स, देन वी सी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स. So by default, Google has 6 ad results, 3 on the top, 3 in the bottom. And the rest, like in between, whatever search results you get are the organic results. Right. After the results end, you see, there are phrases. Yeah, there are phrases. Blue phrases. Yeah, there are keyword ideas. Like people are searching for this, right? So also when you type in a search query, in the search bar, just after it you would see a volume of it, these many searches. Correct. Right. So Google has an algo, that's how it determines ki ye keyword ka itna volume hai, and that also is dependent on other factors. Okay. One being how many people are searching for that. Other being कि एक ईयर में इसका कितना एवरेज है. Okay. So we always go by average monthly searches, right? So there are different tools which predict you the number of the volume of that particular keyword. So that's how you determine it. My query can be how to bake a cake. Okay, that is my query, but that can be a keyword for you. For Swiggy or Zomato? No. Maybe हो सकता है. Yes, anyone, whoever is the advertiser. Right. Because उनका I think target audience इस टाइप के लोग होंगे. Correct. Okay. And if उनका target audience नहीं होंगे तो if I'm wanting to bake a cake, it means I'm craving for a cake, and if I get a Zomato ad saying कि 60% off on cakes, I'm gonna buy it. Okay. There is one controversial question हो सकता है थोड़ा सा. Yeah. मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होते हुए देखी है, सुना भी है कि मैं और मेरे कलीग बात कर रहे हैं किसी एक चीज़ के बारे में. यू कैन से क्रिकेट. तो अच्छा, क्रिकेट ज़्यादा जनरलाइज हो जाएगा, क्रिकेट को छोड़ देते. फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट HP लैपटॉप्स. ओके. और मैं डिस्कशन कर रहा हूँ और कुछ देर बाद मुझे ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड दिख रही है HP लैपटॉप्स. मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ. तो स्पेशली ये मैंने जो है एक पर्टिकुलर डिवाइस के साथ देखा है, कुछ ब्रांड के डिवाइसेस. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो भी डेटा लेता है, हमारे वॉइस नोट को पकड़ता है और उसके हिसाब से एड्स दिखाता है? आई एम स्टिल अनश्योर अबाउट इट. ओके. बिकॉज ये मेरे साथ भी बहुत बार होता है, एंड बीइंग अ मार्केटर आई शुड हैव अ रिस्पॉन्स ऑफ इट, बट आई डोंट नो व्हाट टू से इन दिस सिनेरियो बिकॉज आई हैवंट सर्च्ड अबाउट इट. ओके. मैंने उसके बारे में कुछ सर्च नहीं किया, बट आई हैव रियलाइज कि I have started seeing those things. Let's say, like lately in office, we were talking about Sephora lipsticks, right? And suddenly I started seeing ads on Insta, out of nowhere, because we were just discussing. Okay. So this is something which I also need to explore कि और ये है ना, एक ही टाइप के डिवाइस के साथ होता है मोस्ट प्रोबेबली. जो ऑडियंस है वो डेफिनेटली कमेंट करके बताएगी किस डिवाइस के साथ होता है. करेक्ट. यस. और एक चीज़ है कि अगर हम सर्च करते हैं तो उस टाइप के एड्स हमें दिखाई देते हैं, वो तो एक जेनेरिक चीज़ है. इट्स लाइक तो वो तो गूगल और जो राइट. ओके. सो अगेन कम बैक टू अवर टेक्निकल पार्ट कि सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन को थोड़ा सा ब्रीफ में बता दोगे? या कंपटीशन अगेन, कंपटीशन फॉर परफॉर्मेंस मार्केटर और जो एड्स रन कर रहा है उसके लिए. सो कंपटीशन इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ sides of it. Okay, let me break this. अगर मैं कोई कंटेंट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल फॉर SEO, और SEO में मैं ब्लॉग लिखता हूँ या फिर एक वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो जहाँ पे हो सकता है मैं कीवर्ड्स सर्च प्लानर यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे कंपटीशन हाई हो सकता है, बट वो एड साइड हो सकता है. मेरे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे वहाँ पे बिड ज़्यादा दिख रहा है और सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है और मे भी कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो कंपटीशन को शायद मैं निगलेक्ट कर दूँ, बट एड जो चलाता है उसके लिए वो कंपटीशन बहुत मैटर करता है. राइट. तो मैं आपको एड्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूँ कि जो एड चलाने वाला है उसके लिए वो कंपटीशन जो है वो कितना मैटर करता है, स्पेशली ऑन बिड. बिड भी एक बार बता दो आप क्या होता है. हाँ, बिड क्या होता है कि कीवर्ड बिड. सो कीवर्ड बिड इज द अमाउंट. सो बिड इज बेसिकली द अमाउंट यू वांट टू पे फॉर दैट क्लिक, फॉर अ सिंगल क्लिक. ओके. ठीक है. सो वो कंपटीशन के साथ वैरी करेगा. एक कीवर्ड का कंपटीशन अगर ज़्यादा है, तो कंपटीशन इज व्हाट,
many people are bidding on that. Okay. So again bid comes into play. Bid मतलब बहुत पैसे सारे लगाना, लोग, in हाँ, short? बहुत सारे लोग पैसे लगाने को तैयार हैं उस Keyword पर्टिकुलर पे. कीवर्ड पे. Okay. तो तुम्हारा बिड बढ़ जाएगा. तो क्या होता है कि मतलब जनरली भी जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है नॉर्मली भी, तो वो एरिया कॉस्टली हो जाता है. तो सेम हैपन्स विद द कीवर्ड. यहाँ पे भी ट्रैफिक ज़्यादा है तो इट इज़ गोइंग टू बी द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू गो अप एंड हेंस द बिड, द अमाउंट यू आर विलिंग टू पे. दैट मीन्स अगर कोई एनालिस्ट कीवर्ड के लिए सर्च करता है तो उसको ऐसे कीवर्ड्स देखने हैं जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो, उसके बाद में कंपटीशन कम हो, ताकि बीड भी कम हो जाए. इन शॉर्ट अनटिल एंडलेस कि उसको उस पर लगाना ही है तो वो हाई कंपटीशन कीवर्ड्स के लिए भी जाएगा. हाँ, इफ दैट पर्सन इज विलिंग टू पे कि हाँ हम इतना पे कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, फिर तो ठीक है. वरना द बेस्ट प्रैक्टिस इज ऑलवेज टू सर्च फॉर कीवर्ड्स विद लो बिड्स. ओके. ठीक है, क्योंकि ओवर टाइम व्हाट हैपेंस कि आपका बिड इंक्रीज भी होता है, क्योंकि ट्रैफिक इज समथिंग विच इज डायनामिक. हर महीने चेंज हो रहा है, तो बिड इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज एवरी मंथ. ओके. एनालिस्ट का या फिर एक परफॉर्मेंस मार्केटर का स्पेंड को लेके कितना मतलब उसको कॉन्शियस रहना पड़ता है? बिकॉज जितना भी मैंने देखा है कि अगर आप कुछ आवर्स के लिए अगर उससे ध्यान निकाल दोगे या कि फिर उसको ट्रैक नहीं करोगे तो फट भी सकता है. दैट मीन्स ज़्यादा स्पेंड भी हो सकता है. तो एनालिस्ट का कैसे क्या रहता है और उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं? सो ऑब्जेक्टिव ही है विद परफॉर्मेंस मार्केटिंग की पैसे कम खर्च हो, राइट, रिटर्न ज़्यादा हो. राइट. तो अगर आप पैसे इतने खर्च कर दे रहे हैं आपके रिटर्न से ही ज़्यादा, तो इट्स द एफर्ट्स आर वेस्टेड. तो एनालिस्ट को तो हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस टाइम पे, एंड अगेन यहाँ पे एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइम व्हाट टाइम ऑफ द डे इज़ वर्किंग बेस्ट फॉर यू. ठीक है, व्हाट ऑडियंस सेगमेंट इज़ वर्किंग बेस्ट फॉर यू, व्हाट डेमोग्राफी इज़ वर्किंग बेस्ट फॉर यू. ओपन टारगेटिंग आपने कर दी तो यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इरेलेवेंट ट्रैफिक. राइट. तो जो आपने बोला कि फट जाता है, स्पेंड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप अननेसेसरी लोगों मतलब टारगेट कर रहे हो. ओके. तो हाँ, ट्रैकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू आइडेंटिफाई. आपने कैंपेन रन कर दिया, आपके पास एनफ डेटा है, तो आप उस डेटा को रीड करिए, एनालाइज करिए कि ये सेगमेंट मेरे लिए काम कर रहा है, ये ऑडियंस सेगमेंट मेरे लिए काम कर रहा है इस प्रोडक्ट के लिए. जैसे कि मैंने शूज़ के लिए बोला कि शूज़ तो मेन एंड वीमेन बोथ आर द टारगेट ऑडियंस. तो अब एज ग्रुप क्या मेरे लिए वर्क कर रहा है, क्या 18 to 23 वर्क कर रहा है या 18 to 65 जो ओपन टारगेट. ओके. अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपका एक कैंपेन चलता है, कैंपेन मतलब जिसमें आप ऐड चल रहे हो, राइट, ऐड चला रहे हो, तो उस पर आप कुछ पैसे लगाओगे. तो पैसा तो एक मतलब स्पेंड हो गया है, एक आपका टर्म हो गया जो आपको एनालाइज करना पड़ता है. इसके बाद और कौन से टर्म है जो आप मॉनिटर करते हो एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, स्पेशली इन मार्केटिंग? क्योंकि उसके बाद का फनल तो हम डेफिनेटली अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इतना खींच चुका है और वीडियो लंबा हो जाएगा. सो आप किन चीज़ों पे जो है फोकस करोगे कि आपका कैंपेन ट्रैकिंग आप कर सको कि इस पे जितना पैसा लगा है क्या उससे मुझे उतना ये आ रहा है, टारगेट ऑडियंस आ रहा है, मतलब जिन लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ उसका कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है. तो उसके लिए तो देयर आर 2-3 metrics which are very very important to track. One is the spend again. Spend. Whatever you're spending. Okay. CTR, which is click. What is CTR? CTR is click through rate. Okay. Okay. तो जब आप एड शो करते हो तो देयर आर इम्प्रेशंस एंड देन देयर आर क्लिक्स. Okay. इम्प्रेशंस आर काउंटेड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड्स हैव बीन शोन ऑन द सर्च इंजन. ओके. मतलब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई ऐड आती है तो मैं एक इम्प्रेशन हो गया. हाँ, तो वो एक एज एन इम्प्रेशन काउंट. अगर आपने उस एड पे क्लिक कर दिया, ओके, तो वो हो गया आपका क्लिक हो गया. ओके. पर आपको एक बार दिखा, आपने क्लिक कर दिया तो CTR तो 100% हो गया है ना. तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है कि आप जितना इंप्रेशन दे रहे हो, मतलब जितने बार आपके ऐड शो हो रहे हैं, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपका ऐड उतने बार क्लिक हो. ओके. ठीक है. तो अगर उतने बार क्लिक होगा तो आपका CTR ज़्यादा रहेगा. CTR ज़्यादा होने का मतलब कि आप बहुत रेलेवेंट ऑडियंस को ही केटर कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि किसी ने तभी क्लिक किया है जब उसको लगा है कि ये मेरे लिए रेलेवेंट है. ओके. तो जो आपका स्पेंड है इट इज़ नॉट गोइंग टू गो अप, क्योंकि आपने जितना बिड किया, आपने 1 रुपी बिड किया और 1 रुपी में आपने क्लिक ले लिया, तो आपका 100% CTR भी हो गया, 100% रेवेन्यू भी, मतलब रोआज भी हो गया. बट ये कभी होगा नहीं, राइट? इट्स आइडियल केस. इट्स एन आइडियल सिनेरियो. यस, मतलब एक पैरामीटर है आपका, इसके जितने पास होगे उतना आप अच्छा कर रहे हो. यस. तो एम यही होना चाहिए कि
हमारा CTR हम कोशिश करें कि हायर साइड हो, ओके ठीक है, okay. द हायर द बेटर। या सो जितना मुझे समझ में आया है सबसे इम्पोर्टेंट जो मेट्रिक है, अगर किसी एनालिस्ट को या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर्सन को अगर कुछ चीज़ें ट्रैक करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें स्पेंट, इम्प्रेशंस, CTR एंड क्लिक्स क्लिक्स। Clicks are ओके also क्लिक्स important. ओके Again, if you're tracking अगर मैं CTR का फॉर्मूला डिस्कस करूँ हाँ. दैट इज क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस इनटू 100, Yes, राइट? correct. ओके गॉट There are इट। the other metrics again, but that also depends on the campaign objective. You also have to track your CPA, cost per acquisition, how much Yeah. you are spending to Got it. acquire one customer. Okay, that is also important to track. Yeah, Then right, you right. have to track your ROAS, revenue on ad spend. Yeah. So अब ये vary ये करेगा आपके objective पे. ओके और इस पे भी डिपेंड करता है आपका फनल आपको कहाँ तक ट्रैक करना है, राइट? फनल पे। Correct. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने टाइप के ऐड होते हैं? मतलब अगर कोई एनालिस्ट जो कि मार्केटिंग एनालिस्ट बनना चाहता है, उसको एज अ मार्केटिंग टीम में काम करना है, तो किस टाइप के ऐड प्लेटफॉर्म्स हैं? जैसे हम यहाँ पे आइडियली मैक्सिमम टाइम जो डिस्कशन करते हो गूगल एड्स को लेके आते हैं, तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप बताओगे वो किस टाइप के प्लेटफॉर्म है? क्योंकि उसके एनालिटिक्स नियर अबाउट सेम होते हैं, बट उनको पता रहना चाहिए कि कौन से ऐड जो है कंपनीज काम करते हैं, बिकॉज उनको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के साथ टैकल करना पड़ेगा। तो as you said, there are different ad platforms. So I'll categorize it into three: search ads, Okay. social ads, Okay. and then your display. Not three, but it is going to be more than three. But I'm going to simplify it. तो एक हो गया आपके सर्च एड्स, द एड विच यू आर सीइंग ऑन सर्च इंजन्स लाइक गूगल, राइट? बिंग। अच्छा, कोई सर्च करने के बाद जो पहले आपने तीन कीवर्ड हाँ, सर्च okay. किया और आपके एड्स आए गूगल पे या बिंग पे, तो Okay. आपके सर्च एड्स हो गए। नंबर सेकंड, ठीक है, सोशल एड्स हो गए। सोशल एड्स हो गए जो आपके सोशल मीडिया पे आते प्लेटफॉर्म्स हैं, हैं, जैसे okay. फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, तो वहाँ पे आपको एड्स दिख रहे हैं। अब इंस्टा पे आपको स्टोरी में एड्स दिख रहे हैं, आपके Okay. फीड में ऐड दिख रहे हैं, आपके एक्सप्लोर में ऐड दिख रहे हैं। सिमिलरली हैपेंस विद फेसबुक। ओके नंबर थर्ड, नंबर थर्ड इज डिस्प्ले एड्स। Okay. सो देयर आर सर्टेन डिस्प्ले प्लेसमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपको MSN के बारे में पता होगा, MSN.com, MicrosoftNetwork.com, या तो वहाँ पे यू सी बैनर एड्स। ओके ठीक है, ओके अब आगे आप YouTube पे भी यू सी एड्स, दोज आर वीडियो एड्स। बैनर भी रहते हैं, हाँ, यूट्यूब बैनर भी वीडियो भी रहते रहते हैं, हैं। इन स्ट्रीम भी रहते हैं। ओके, दीज आर डिस्प्ले एड्स, राइट? या दिस कैन बी डिस्प्ले और okay, YouTube. okay. So and then comes native ads. Okay. So those ads which you see on native platforms like Outbrain है, Taboola है, there are certain publishers also, like The Hindu है, so that's a publisher. Hindu पे भी आपको राइट हैंड साइड पे, टॉप पे, बॉटम पे, कहीं पे इन Ads फील्ड में दिख रहे आपको हैं। एड्स दिख जाते हैं। Okay. तो दोज आर द एग्जांपल ऑफ नेटिव एड्स। सो देयर आर सो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो सिंपल, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन पे ऐड चलती हैं, तो आपकी उसके सोशल मीडिया जो जितने भी एनालिटिक्स है, उनके प्लेटफॉर्म के एनालिटिक्स है एड्स के, वो आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको डेटा जो है वो इंपोर्ट करना है और उस पर आपको एनालिसिस करना है। नंबर सेकंड, गूगल के बारे में बताया आपने, गूगल और यूट्यूब, डेफिनेटली यूट्यूब सोशल मीडिया में आता है, बट उसके ऐड जो है आप गूगल से चला सकते हो, इफ आई एम नॉट ओके। उसके अलावा जो सोशल मीडिया तो हमने कवर कर लिए, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाले सोशल मीडिया में भी हो सकता है यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, राइट? यस। इसके अलावा कोई है एक दो जो यूज होते हैं? हाँ, ट्विटर, सॉरी, है, ओके, स्नैपचैट है। ओके, सो स्नैपचैट पे भी होते हैं, पहले टिकटॉक पे भी एड्स आती थी आई थिंक, अभी तो इंडिया में बैन हो चुका है। हाँ, टिकटॉक पे भी एड्स आते हैं, वो Yeah. इंडिया में बैंड है, या बट Pinterest एंड Snapchat हैव द हाईएस्ट तो कन्वर्जन एक अगर मोटा मोटा क्वेश्चन पूछूं तो जितने भी आपने पहले 3-4 चीज़ें बताई, स्पेंट, क्लिक्स, इम्प्रेशंस एंड CTR, तो ये सब प्लेटफॉर्म से नियर अबाउट सेम ही रहते हैं। हाँ, ये मैट्रिक्स मोर और लेस okay. आपको हर जगह ही ट्रैक करना है। या Because नहीं मतलब ट्रैक तो करना ही है डेफिनेटली, बट सेम रहते हैं सब प्लेटफॉर्म पे। मतलब आप ये 4 टर्म्स ब्रॉडली अगर समझ जाओ तो बस आपको प्लेटफॉर्म में जाके थोड़ा सा कुछ डिफरेंस दिखेगा, बाकी ओवरऑल तो चीज़ें सेम ही है। Correct. ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग ट्रैक करनी है इनिशियली, मतलब एक एनालिस्ट के लिए। डेफिनेटली अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो बंदा है, यानी कि परफॉर्मेंस मार्केटर, उसका तो ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, वो हर एक चीज़ को देखेगा, बट जो पर्सन जो डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है वहाँ से, उसके लिए तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब ये आनी ही चाहिए, राइट? अब ये भी बता दीजिए कि अगर मुझे गूगल से फॉर एग्जांपल मेरे सीनियर ने कोई ऐड चलाई है, वहाँ से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो मे बी मैनुअली हो सकता है और ऑटोमेशन है
उस चीज़ के लिए हाँ, ओके automation तो है। अगर मैनुअली बोलो तो मैनुअली तो मतलब हम देखें आप डैशबोर्ड, हाँ, right? मतलब यूआई में गए, या आपने देखा कितना और एक चीज़ की आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इन शॉर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या Right. फिर आपके पास ट्रैकिंग टूल्स भी हैं, या जैसे गूगल एनालिटिक्स है, फिर सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल्स भी हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। Okay. एंड देन अगेन यू ऑटोमेटिक कोई टूल्स है जिसको हम एपीआई लगा के पावर बीआई पे एपीआई आपने कर दिया है, आपने ट्रैकिंग कर दी है पावर बीआई पे, सो Okay. फ्रॉम देयर आल्सो यू कैन एक्सट्रैक्ट डेटा। कैन वी कनेक्ट पावर बीआई टू एड्स प्लेटफॉर्म डायरेक्टली No, you can do API integration, but you cannot do it directly, right? Yeah. So you cannot do it directly, but there is a API integration Okay. from where you can fetch the data from the ad platform to the Power BI. तो एपीआई के लिए पाइथन की ज़रूरत है या फिर कुछ टूल्स भी आते हैं हो सकता है मतलब आई हाँ, डोंट नो tools भी हैं and Python भी ओके है. So दोनों यूज़ कर सकते हैं इन Yes, शॉर्ट yes. आ जाता है उससे हाँ. ओके गॉट इट सो जैसे आपने बात किया अभी गूगल एनालिटिक्स और गूगल एनालिटिक्स मैंने बहुत ज़्यादा जॉब डिस्क्रिप्शन में देखा है एक मार्केटिंग एनालिस्ट के सो आप बता सकते हो व्हाट इज़ गूगल एनालिटिक्स और क्या कितना इंपॉर्टेंट है वो एक एनालिस्ट के लिए तो जब भी यू आर रनिंग एड्स और यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी ऑन योर वेबसाइट और या फॉर योर वेबसाइट, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके वेबसाइट पे यूज़र का बिहेवियर क्या है, ठीक है? तो गूगल एनालिटिक्स हेल्प्स यू ट्रैक ऑल दैट बिहेवियर कि क्या बिहेवियर था, कितने ऑडियंस आए, कितनों ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की और कितने चले गए. तो दैट हेल्प्स यू फॉर एनालिस्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो उनको हेल्प करेगा कि हम क्या कर सकते हैं इस एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? हो सकता है हमारी वेबसाइट का स्पीड इतना लो है कि लोग आ रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं. तो मतलब ना सिर्फ वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है पूरे मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल इट्स वेरी दैट्स व्हाई वो इतना मतलब पूछा जाता है That's why it is. That's why for every role, for every marketing role, Google Analytics is very important. आपको पता होना चाहिए कि आपका यूजर का बिहेवियर क्या है आपके वेबसाइट पे. गॉट इट उस पर ये भी पता चलता है कितने लोग आ रहे हैं करेक्ट. ओके कितनों ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की और कितने चले गए, और उसमें आपको ये भी पता चलता है कि कितने लोग किस पेज पे लैंड हुए हैं. ओके मतलब ओवरऑल हमें पता चलता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सब पता यूजर बिहेवियर जो है ना, यू कैन चेक फ्रॉम वन सिंगल प्लेटफॉर्म. दैट्स गूगल एनालिटिक्स. ओके दैट्स व्हाई वो गूगल एनालिटिक्स यूज करते हैं हाँ. कि उनको पता चले कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और हमारा It is कन्वर्जन going to help them optimize their efforts, their marketing efforts. ओके ओके गॉट इट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक मार्केटिंग एनालिस्ट पर्सन जो अभी एस्पिरेंट है उसको बनना है अभी, ठीक है? तो उसको किस टाइप के टूल्स और कौन से टूल्स आने चाहिए ओवरऑल ब्रॉडली विल नॉट गो इनटू डेप्थ क्योंकि ये टूल्स इतने जेनेरिक है कि लोग सर्च करके उसको मतलब इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. तो देयर आर पेड टूल्स एंड देयर आर फ्री टूल्स. सबसे पहले तो उनको कीवर्ड रिसर्च करना आना चाहिए. Okay. तो कीवर्ड रिसर्च के लिए देयर आर फ्री टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर. ओके एंड देयर आर पेड टूल्स आल्सो लाइक Moz, Okay. SEMrush, ओके Ahrefs. ओके सो ये कुछ पेड टूल्स हैं. Spyfoo. ओके ये तो कीवर्ड रिसर्च के हो गए. Okay. अब वेबसाइट परफॉर्मेंस के लिए गूगल एनालिटिक्स इज द बेस्ट. Yes, यू कैन गो okay. फॉर. ओके. मैक्सिमम मुझे लगता है एक ही टूल है ऐसा जो आपके वेबसाइट का ट्रैफिक मॉनिटर करता है. ओके पूरा monitors and let you know. ओके फिर if you want to do research for social, तो there is Sprout, ओके there is Hootsuite, ओके and there is Social Pilot, ओके many more like that. So कुछ तो subscription based हैं, some have 7-day free trial, so and others are paid. So depending on कि क्या आपका size of business है, you're gonna get the tool based on your requirement. ओके मोटा-मोटी बात करूँ तो गूगल प्लेटफॉर्म्स जो हमने पहले डिस्कस किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी आते हैं, उसके बाद में कीवर्ड प्लानर स्पेशली जो अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो वो इससे प्रैक्टिस कर सकता है गूगल कीवर्ड प्लानर से. हॉटसूट के बारे में बात किया जो कि बहुत Hootsuite. Hootsuite Hootsuite, ओके yes. ओके That's a social media tool. ओके इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल आता है गूगल एनालिटिक्स. गूगल आपने क्या बोला अभी ट्रेंड राइट गूगल ट्रेंड्स. हाँ, Google ओके Trends. तो ये टूल्स है जो कि एकदम बेसिक मीन्स ये अगर सीख जाते हो तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में स्टैंड कर सकते हो बाकी लोगों की कंपैरिजन में. ओके गॉट इट. सो आई थिंक टेक्निकल क्वेश्चन तो हो गए. एक बार अभी रैपिड फायर राउंड पे आ जाते हैं. Sure. ओके सो द रूल इज आपको जिस क्वेश्चन का आंसर करना है आप कर सकते हो. यस नो
कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको आंसर नहीं करने, आप बोल सकते हो नहीं करने. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर फर्स्ट सैलरी जब आप मार्केट में आई स्टूडेंट के बाद, मतलब कॉलेज के टाइम, कॉलेज के बाद? I was earning 19,000 Per month? Yeah. या व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब? सेम Yeah, I was into this. परफॉर्मेंस मार्केटिंग. Not performance, yeah, you can say performance marketing. I used to do email marketing and social media marketing. So that used to आप be मार्केटिंग में organ- थी, मतलब yeah, इन शॉर्ट मार्केटिंग. marketing, yeah. हाँ, नंबर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट यू विल प्रेफर, स्टार्टअप और एमएनसी टू वर्क? Been into MNC for a very long time. This is my first stint at startup, which is at in Mobi. ओके. So I'm loving it. But it is too soon to say MNC or startup because I'm in the startup Okay. right now. But I have the best of both the worlds, so I don't know. I might pass this question. ओके. ठीक है, मैं आपको एक मतलब कंडीशन देता हूँ फर्स्ट कि आप इंडिया के नंबर 1 फाइनेंस स्टार्टअप में हो. और No, that's a advertising agency. नहीं, मैं आपको हाँ, जस्ट दे अच्छा, रहा you are giving me a हूँ. हाँ, scenario. Cool. जस्ट कंसिडर. ओके. नंबर सेकंड आपके पास एक ऑफर है गूगल की. Google डेफिनेटली. any day. नो सेकंड थॉट. No second thought. एक सेकंड के Google लिए any मैंने day. सुना. Yeah. ओके. वर्किंग इन नाइट और वर्किंग इन डे टाइम? Day. ओह, Working early mornings. आप इंजीनियर नहीं हो? मैं हूँ. ओके. But I prefer working. आप हॉस्टल में रहोगे अभी? Yes. I Right. have worked in night shifts also for a very long time. ओके. But दैट्स व्हाई यू हेट वर्किंग इन नाइट? yeah, that's why I hate working ओके in ओके night. ओके. I am very less productive in the night. I am highly efficient and productive in the morning. So early morning shifts I love. Like those are the best. ओके. वर्क फ्रॉम ऑफिस और रिमोट वर्क? I have been working remotely for I worked remotely for 3.5 years. So work from office. हाँ, you love work Yeah. from office. Yes, I do. Okay. I thought you have pet, so you will prefer work from home. Yeah, I have this separation anxiety from my pet whose name is Whiskey. But I try to. So I said working from office He's early. barking. Yeah, he's barking. So working from office early. So I try to go early and come early, Okay. so that I'm able to balance both my lives. Okay. Nice. So, Bhavya, Hmm. ma'am, Hmm. नहीं बोलना है, I know. नहीं. But the last question is, what is your message to aspirants who are going to become marketing analyst in few days? क्योंकि वो ये podcast देख रहे हैं, definitely उन्होंने इससे कुछ ना कुछ लिया होगा. So, what is your message to them? Just keep your eyes and ears open. Okay. Try to read as much as you can, Okay. and always be updated with the new trends and tools in the market. That's Okay. very, very important. That is going to give you an upper hand Okay. always. And always go through the tools I mentioned. Tools, So, tools like? tools like Google Analytics, Google Keyword Planner, Search Console, and I mentioned a few tools, this paid tools as well for social, which is Hootsuite, Social Pilot, SEMrush, which Okay. is not a Yeah, social yeah. media tool but analytics Okay. tool, Ahrefs, and Moz, etc. So that's very, very important. The another question is कि अगर किसी को आपके साथ कांटेक्ट करना है Hmm. या कुछ भी आपको क्वेरी पूछनी है रिगार्डिंग दिस, तो वो कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं? They can reach out to me on LinkedIn. ओके. सो मैं आपकी जो प्रोफाइल लिंक है वो Yeah, डिस्क्रिप्शन में डाल please do दूंगा. mention there. Yeah. ओके. I'm always happy to help. ओके. नाइस. दैट्स नाइस. So before learning tools, they should be aware of Excel, ओके. and they should be efficient in data representation. ओके. तो क्योंकि एनालिस्ट को डेटा पे ही काम करना है, Right. तो उनको समझ आना चाहिए कि कौन सा डेटा कैसे रिप्रेजेंट करना है. ओके. And Excel is very, very important for Okay. them. Besides that Huh. comes the ad platform tools and your analytics tools. So as I mentioned, analytics में Google Analytics for your ad performance and as well as your website performance. Then if you're looking for organic performance, Search Console, Google Search Console.
The same tools are present for Bing search engine as well. Okay. Okay, and then social media tools Okay. like Hootsuite, Social Pilot, Hmm. and keyword planner tools, which are again the paid side of it, which is SEMrush, and it is not only keyword planner but also analytics. Mhm. So they give you insights about your website performance, your ad performance as well. So SEMrush is one. Then Ahrefs for keyword research, Moz. So these are a couple of tools they should be aware of, and again they need to be quite aware of what's happening in the market, about the trending topics, updates Okay. in the market, and also on the tools, what updates are coming, what new tools are launched, what new ad platforms are launched. So they should be well aware of all those Okay. things as well. Apart from ads platform, do you use any visualization tools? Visualization as in? We can say Power BI or Tableau. Yes, we do. We use it here in Mubi, so we use Power BI to check how our accounts are performing. By Okay. accounts I mean, So Power BI and Yeah. Tableau is also important for analysts. that's very important. They Yeah. need to have a sense of understanding of how data is displayed there, Okay. and how they can read that data, and based on that data, how they can optimize their campaigns Mhm. and work towards the goal of their marketing effort. Okay. Yeah. Yep. Got it. Cool. ओके सो बहुत सारी चीज़ें सीखी है राइट फ्रॉम Glad. कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है, उसके बाद में परफॉर्मेंस मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स क्या होते हैं, क्या ट्रैक करनी चाहिए, एड प्लेटफॉर्म्स कितने होते हैं, उसमें एनालिटिक्स का क्या रोल होता है, सोशल मीडिया के एनालिटिक्स, उसके बाद में जो ऑटोमेशन टूल है या फिर जहाँ से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लाइक गूगल एनालिटिक्स, सेमरश, इस जैसे टूल्स, और जो आपने बताया विजुअलाइजेशन टूल और एक्सेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेल एंड गूगल शीट राइट, ऑलमोस्ट सेम बट डिफरेंट, क्योंकि गूगल शीट्स में जो फंक्शनलिटी है कुछ यूनिक वो एक्सेल पे नहीं मिलती, एक्सेल पे जो है वो गूगल शीट में, दोनों इंपॉर्टेंट है. दोनों एंड important है. विजुअलाइजेशन And टूल if you दैट know इज Excel, you will be able to work on sheets. Google Sheets. So, yeah. Yep. And visualization tool, Yeah. Power like BI, Tableau. Tableau. और एड्स प्लेटफॉर्म तो है ही जहाँ पे आपको ग्राफ्स और डेटा मिल रहा है. ओके दैट्स इट. For now. हाँ. सो जैसे आपने बोला रैपिड फायर राउंड में कि रात में आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? Yeah, because I'm very tired all throughout the day with the work and also with the exercises which my dog made me do. I'm a dog mom. Okay. I have a golden retriever. His name is Whiskey, ओके. and he is super active. ओके. वो इतना एक्टिव है कि अगर मैं घर से काम कर रही हूँ तो शायद मैं घर से काम कर ही ना पाऊँ, ओके. क्योंकि मैं ओके हियर इज ओके. Whiskey come बेटा, come jump, good boy, yes, come here, Whiskey high five. ओके. Okay. आई थिंक आपका पर्सनल टाइम Start हो आपको गया है. देना पड़ेगा. यस. ओके देन भाव्या मैम, आपने टाइम दिया और इतने इंसाइट्स शेयर किए, और आई होप बहुत सारे लोग जो है उसमें से सीखेंगे और वो आपको क्वेरीज भी पूछेंगे. आई नो आपका डीएम भरने वाला है. Yeah, तो sure. थैंक यू. Cool. It was a fun session. I really enjoyed a lot, and hoping to have such more sessions with you. ओके. Yeah, it's a long way to go, Vishal. Thank you so much. थैंक यू. Thank you, Whiskey.